Hello students, good morning. Welcome to SS Online Classes. Student, we were reading chapter 2 Uses of Computers of our Edunment Fun with Computer book. In our last video, our topic was identifying the places where computers are used. So students, included this topic, we have read about banks, which is page number 14, about hospitals, which is page number 15, and airports and railway station, which is page number 16, and last we have read also about in designing, which is page number 17, and we have also read and solved exercise B, the correct option of this chapter second in our Fire Computer notebook in our last video. And since today's our topic is also same, today's our topic is identifying the places where computers are used, and included this topic today we will read that what's the importance of a computer in publishing and in scientific research and defense, which is page number 18, and after it's done we will read that what's the importance of a computer in learning new skills, and after it's done we will read some important point and useful tips, which is page number 19, and after it's done we will read quick recap and words to remember, which is page number 20, and last we will read and solve exercise C and D of this chapter second, uses of computers, in our Fire Computer notebook in our today's class. Okay, so all students pay partial attention and listen to my words clearly, because today we are going to read that what's the importance of a computer in publishing, in scientific research and defense, and in learning new skills. Okay, and so all students look at the page number 18. Okay, let's see that what's the importance of a computer in publishing. Okay, कि publishing में computer अपनी क्या भूमिका निभाते हैं. Okay, in publishing, here the meaning of in publishing means students होता है प्रकाशन. Okay, in publishing it's in प्रकाशन में. Let's see, computers are useful in printing newspapers, magazines, books and पम्फलेट्स. ओके, तो कंप्यूटर्स आर मीन्स है यूजफुल मीन्स उपयोगी, इन मीन्स में प्रिंटिंग मीन्स छापना. ओके, ये प्रिंट करना. न्यूज़पेपर्स मीन्स अखबारों, मैगजीन्स मीन्स स्टूडेंट्स पत्रिका, बुक्स मीन्स किताबें, एंड मीन्स ऑफ पम्फलेट्स मीन्स पर्चे. ओके, तो स्टूडेंट्स कंप्यूटर का उपयोग न्यूज़पेपर्स इट्स मीन अखबार, ओके, मैगजीन इट्स मीन पत्रिकाओं, बुक इट्स मीन किताबें, एंड मीन्स और पम्फलेट्स मीन्स पर्चे, इन सबको प्रिंट करने में किया जाता है, छापने में किया जाता है. ओके, तो कंप्यूटर का उपयोग न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स और पम्फलेट्स को प्रिंट करने में किया जाता है. क्लियर स्टूडेंट्स, वी कैन सी इन दिस पिक्चर. ओके, here we can see he is a boy and he is printing newspapers, magazines, books and pamphlets. Okay, with use of computer, ये कंप्यूटर का यूज़ करके प्रिंट कर रहा है. ओके, लेट्स सी सेकंड, कंप्यूटर हैज़ हेल्प्ड इन डिज़ाइनिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ दिस बुक. ओके, तो इट्स मीन कि कंप्यूटर ने इस पुस्तक की डिज़ाइनिंग और प्रिंटिंग में मदद की है. क्लियर, डिज़ाइनिंग मीन्स होता है रूपरेखा तैयार करना. ओके, एंड प्रिंटिंग, ओके, प्रिंट करना. तो कंप्यूटर ने इस किताब की, ओके, इस पुस्तक की डिज़ाइनिंग और प्रिंटिंग में मदद की है. एंड द नेम ऑफ दिस बुक इज़ यूनिवर्सल डिज़ाइन न्यूयॉर्क. ओके, सिस्टम वी कैन सी इन दिस पिक्चर. ओके, कंप्यूटर ने हेल्प की है इस बुक की डिज़ाइनिंग और प्रिंटिंग में. लेट्स इट students in scientific research and defense. Okay, so let's see that what's the importance of a computer in scientific research and defense. Okay, so it's mean in means में scientific means वैज्ञानिक, research means अनुसंधान, and means और defense means रक्षा. Okay, in scientific research and defense it's mean वैज्ञानिक अनुसंधान और रक्षा में. Okay, so let's see, computers are very useful to scientists in doing research, designing robots and forecasting weathers. Okay, तो कंप्यूटर्स आर मीन्स है वेरी मीन्स बहुत, हेल्पफुल मीन्स सहायक. ओके, टू साइंटिस्ट इट्स मीन वैज्ञानिकों के लिए. ओके, इन डूइंग रिसर्च करने में, खोज करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए. रिसर्च मीन्स होता है अनुसंधान या खोज. ओके, डिज़ाइनिंग रोबोट्स की डिज़ाइनिंग करने में. ओके, रोबोट की रूपरेखा तैयार करने में. डिज़ाइन मीन्स होता है रूपरेखा तैयार करना. एंड फॉरकास्टिंग वेदर. ओके, और वेदर की फॉरकास्टिंग के लिए. ओके, इट्स मीन मौसम की भविष्यवाणी के लिए. तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है वैज्ञानिकों के लिए. ओके, कंप्यूटर अनुसंधान करने में. ओके, या वी कैन से दैट खोज करने में, रोबोट डिज़ाइन करने में. ओके, या रोबोट की रूपरेखा तैयार करने में और मौसम की भविष्यवाणी करने में वैज्ञानिकों के लिए बहुत उपयोगी है. क्लियर, कंप्यूटर अनुसंधान करने में, रोबोट डिज़ाइन करने में और मौसम की भविष्यवाणी करने में वैज्ञानिकों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है. क्लियर, इसमें वी कैन सी इन दिस पिक्चर हियर some people and they are designing robots and forecasting weathers and doing research with the use of computer. Okay, let's see next. Computers are very useful in launching and controlling satellites, rockets and missiles. Okay, तो स्टूडेंट्स कंप्यूटर बहुत ज़्यादा डिफेंस के एरिया में भी, ओके, रक्षा के क्षेत्र में भी जो कंप्यूटर है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है. ओके, कंप्यूटर आर वेरी यूजफुल. ओके, कंप्यूटर बहुत ज़्यादा उपयोगी इन मीन्स में लॉन्चिंग एंड कंट्रोलिंग सैटेलाइट्स. ओके, इट्स मीन कि रॉकेट
उपग्रहों, रॉकेटों और मिसाइलों को लॉन्च करने में, ओके, एंड मिसाइल्स, ओके, और मिसाइलों को, इट्स मीन कंप्यूटर बहुत ज़्यादा उपयोगी है, ओके, उपग्रहों, रॉकेट और मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए और उन्हें नियंत्रित करने के लिए, क्लियर। तो कंप्यूटर उपग्रहों, रॉकेट और मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए और उन्हें कंट्रोल करने के लिए, इट्स उन्हें नियंत्रित करने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्लियर। इस टाइम वी कैन सी इन दिस पिक्चर हियर आर सम पीपल एंड they are launching and controlling satelliting rockets and missile with the use of computer, okay. So students, turn your page forward and look at the page number 19, okay. Now we are going to read that what's the importance of a computer in learning new skills, okay. In learning new skills, okay, in learning means सीखने में, okay, new means नई, skills means होते हैं कौशल, okay. तो in learning new skills it's mean कि नए कौशल या नए गुण सीखने में, skills means होते हैं कौशल या गुण या हुनर, तो नए गुण सीखने में या नए हुनर सीखने में या नया कौशल सीखने में, ओके. तो लेट्स सी the computer assists in learning how to drive a car or how to fly an aeroplane, okay. The computer means computer assist means help करता है, मदद करता है. in learning means सीखने में, how to drive a car, कि एक कार को कैसे ड्राइव किया जा सकता है, एक कार को कैसे चलाया जा सकता है, और how to fly an aeroplane, और एक एरोप्लेन को, एक हवाई जहाज को कैसे उड़ाया जा सकता है, ओके. तो स्टूडेंट्स, इट्स मीन कि कंप्यूटर हमें ये सीखने में मदद करता है कि एक कार को कैसे चलाया जाता है या एक हवाई जहाज को कैसे उड़ाया जा सकता है, क्लियर. स्टूडेंट्स, वी कैन सी इन दिस पिक्चर दैट here one person and he is learning how to drive a car, okay. And students, this person is learning that how to drive a car and it's a use with computer, okay. ये कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, क्लियर. लेट्स सी नेक्स्ट, द कंप्यूटर असिस्ट इन लर्निंग न्यू स्किल्स सच एज वेरियस लैंग्वेजेस, टाइपिंग्स, कुकिंग्स, गार्डनिंग, etc, ओके. तो कंप्यूटर असिस्ट में मदद करता है इन मीन्स में लर्निंग न्यू स्किल्स, इट्स मीन नए कौशल को सीखने में, नए गुणों को सीखने में या नए हुनर को सीखने में. स्किल्स में स्टूडेंट्स होता है हुनर, कौशल या गुण, ओके. सच एज मीन्स जैसे, वेरियस मीन्स विभिन्न प्रकार की, लैंग्वेज मीन्स भाषा है, ओके. टाइपिंग, ओके, टाइप करने में, कुकिंग खाना बनाने में, और गार्डनिंग मीन्स स्टूडेंट्स होता है बोल सकते हैं कि बगीचे के से रिलेटेड, ओके, बगीचे की देखभाल करना, उससे रिलेटेड, ओके. उससे रिलेटेड वर्क को बोलते हैं गार्डन, से रिलेटेड वर्क को बोलते हैं गार्डनिंग, क्लियर. तो इट्स मीन कि कंप्यूटर नए कौशल को सीखने में, ओके, नए हुनर या नए गुण को सीखने में, जैसे कि विविध भाषा, ओके, विविध भाषाओं को सीखने में, टाइपिंग करने में, कुकिंग में और गार्डनिंग आदि में मदद करता है, ओके, इन सब में सहायता करता है. लेट्स सी, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, यू गेन नॉलेज अबाउट थिंग्स सच एज ड्राइविंग विदाउट एवन यूजिंग एक्चुअल व्हीकल्स, ओके. एक्चुअल व्हीकल्स मीन्स वास्तविक व्हीकल, ओके. तो वास्तविक वाहनों बोल सकते, व्हीकल मीन्स होते हैं वाहन, ओके. दीज आर नोन एज सिमुलेटर्स विद वर्क विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, ओके. यू गेन नॉलेज अबाउट थिंग्स, ओके. इट्स मीन कि आप नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, ओके. आप नॉलेज को गेट कर सकते हैं, आप नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं, ओके. थिंग्स की, वस्तु, अबाउट थिंग्स, इट्स मीन वस्तुओं के बारे में, सच एज ड्राइविंग, जैसे कि ड्राइव करना, विदाउट एवन यूजिंग एक्चुअल व्हीकल्स, ओके. इट्स मीन कि आप चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जैसे वास्तविक वाहनों का उपयोग किए बिना, ओके, भी गाड़ी चलाना. तो स्टूडेंट्स, आप एक्चुअल व्हीकल, इट्स मीन वास्तविक गाड़ी का उपयोग किए बिना आप चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते, ओके. आप बिना, मतलब आपके पास व्हीकल ना हो, एक्चुअल व्हीकल ना हो, ओके. इट्स मीन आपके पास वास्तविक गाड़ी ना हो, फिर भी आप कंप्यूटर के थ्रू, ओके, कंप्यूटर की हेल्प से आप ड्राइव करना सीख सकते हैं. दीज आर नोन एज सिमुलेटर्स विच वर्क विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, ओके. और स्टूडेंट्स, इन्हें सिमुलेटर के रूप में जाना जाता है, जो कंप्यूटर की मदद से काम करते हैं. और जो लोग कंप्यूटर की मदद से काम करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, किस नाम से जाना जाता है, सिमुलेटर, क्लियर. सो स्टूडेंट, लेट्स सी नेक्स्ट, यूजफुल टिप्स, ओके, उपयोगी टिप्स, ओके, उपयोगी सलाह. कीप ऑन सेविंग योर फाइल ऑन कंप्यूटर बाय प्रेसिंग शॉर्टकट की Ctrl+S आफ्टर एवरी 2 to 3 minutes एक्टिंग और टू सेव फीचर्स इन MS ऑफिस, ओके. स्टूडेंट्स, कंप्यूटर में आपने कोई भी फाइल क्रिएट की, ओके, अपनी फाइल को सेव करने के लिए, अपनी फाइल को सुरक्षित करने के लिए आप क्या करेंगे, बाय प्रेसिंग शॉर्टकट कीज़, ओके. आप क्या करेंगे, अपनी फाइल को कैसे सेव कर सकते हैं कि आप शॉर्टकट की जो है होती है Ctrl+S, ओके, इस पर आप प्रेस करेंगे, इसे आप दबाएंगे आफ्टर एवरी 2 to 3 minutes, ओके, प्रत्येक 2 से 3 मिनट के बाद, एज एक्टिवेटिंग ऑटो सेव फीचर्स इन MS ऑफिस, ओके. जैसे कि कोई एक्टिवेटिंग ऑटो सेव हो जाती है, ओके, कोई फीचर सेव हो जाता है MS ऑफिस में, ओके. इट ऑटोमेटिकली सेव्स योर फाइल्स, ओके. तो ये क्या करती है, अपने आप ऑटोमेटिकली में स्वतः अपने आप स्वयं से, ओके. तो ये अपने आप आपकी फाइल जो होती है वो सेव हो जाती है, क्लियर. सो स्टूडेंट्स, टर्न योर पेज फॉरवर्ड एंड लुक एट द पेज नंबर 20, ओके. क्विक रिकेप, ओके.
तो आवर टीचर्स यूजेस द कंप्यूटर टू प्रिपेयर रिपोर्ट कार्ड्स। ओके, हमारे अध्यापक कंप्यूटर का उपयोग रिपोर्ट कार्ड्स तैयार करने में करते हैं। ओके, लेट्स इज नेक्स्ट पॉइंट, शॉपकीपर्स यूज़ कंप्यूटर्स टू प्रिपेयर बिल्स। ओके, इट्स मीन दुकानदार कंप्यूटर का उपयोग बिल बनाने में करते हैं। ओके, बिल को तैयार करने में करते हैं। प्रिपेयर मीन्स तैयार करना। ओके, बिल मीन्स होते हैं नोट। रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल आवर क्रेडिट्स एंड डेबिट्स आर मेंटेन्ड बाई द कंप्यूटर इन बैंक्स। ओके, तो जितने भी रिकॉर्ड होते हैं तो तो हमारे सभी क्रेडिट और डेबिट का रिकॉर्ड कंप्यूटर द्वारा बैंकों में अभिलेख किया जाता है। ओके, मेंटेनिंग मीन्स स्टूडेंट्स होता है कि अभिलेख करना। ओके, मेंटेन किया जाता है, तो हमारे सभी क्रेडिट और डेबिट का रिकॉर्ड कंप्यूटर द्वारा बैंकों में रखा जाता है। ओके, एंड लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर्स आर यूज्ड बाय द डॉक्टर्स टू डायग्नोज मैनी डिसीज़। ओके, तो कंप्यूटर का उपयोग डॉक्टर के द्वारा, चिकित्सक के द्वारा बहुत सारी डिसीज़ को, बहुत सारी रोगों के निदान में किया जाता है। रोगों के मतलब बीमारियों को, रोगों को पहचानने में किया जाता है कि किस टाइप की डिसीज़ है। ओके, और रोगों के निदान में किया जाता है। लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट, वी गेट अवर रेलवेज एंड एयरलाइन सीट्स रिजर्व्ड इन एडवांस्ड मच मोर कन्वीनियंटली ओनली बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, इट्स मीन कि हम अपनी रेलवे और एयरलाइन की सीट को पहले से ही आरक्षित करवा सकते हैं, रिजर्व करा सकते हैं केवल कंप्यूटर का प्रयोग कर, केवल कंप्यूटर के कारण। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट, बुक्स, पम्फलेट, न्यूज़पेपर इट आर पब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। तो बुक्स हो गए, इट्स मीन किताबें हो गई, पम्फलेट्स हो गए, पर्चे हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, इट्स मीन अखबार हो गए, इट्स मीन आदि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती, मैगजीन्स होती। ओके, आर पब्लिश मीन प्रकाशित की जाती विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की हेल्प से। ओके, कंप्यूटर का प्रयोग करके, तो कंप्यूटर की मदद से बुक्स, पम्फलेट, न्यूज़पेपर आदि प्रकाशित की जाती है। क्लियर? लेट्स सी वर्ड्स टू रिमेंबर। ओके, शब्द याद रखने के लिए, एटीएम। ओके, स्टूडेंट, द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम इज ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ओके, एंड एडवांस मशीन दैट इनेबल्स अस टू विदड्रॉ मनी थ्रू इट। ओके, तो स्टूडेंट जो एटीएम होता है जिसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ओके, तो ये एक एडवांस मशीन है, एक उन्नत मशीन है जो हमें इसके माध्यम से पैसे निकालने में सक्षम बनाती है। क्लियर? लेट्स सी एनिमेशन। ओके, हियर द मीनिंग ऑफ एनिमेशन मीन्स होता है स्टूडेंट सजीवता। ओके, सजीवता, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वीडियोज एंड कंप्यूटर गेम्स इन विच ड्राइंग और मॉडल सीम टू मूव। ओके, इट्स मीन कि वीडियो और कंप्यूटर बनाने की कंप्यूटर गेम बनाने की प्रक्रिया। ओके, वीडियो और कंप्यूटर गेम बनाने की प्रक्रिया जिसमें ड्राइंग में चित्रकला। ओके, जिसमें चित्रकला और जो मॉडल होते हैं, मॉडल्स में स्टूडेंट्स होता है, मॉडल्स में बोल सकते हैं प्रतिमा बोल सकते हैं। ओके, मॉडल जो होती है, प्रतिमा होती है, वो चलते हुए प्रतीत होते। ओके, तो कंप्यूटर के द्वारा हम एनिमेशन दे सकते हैं, सजीवता दे सकते हैं कि कोई भी मॉडल है या कोई भी ड्राइंग है, ड्राइंग में कोई भी चित्रकला है, वो ऐसी फील होती है, ऐसी सीम होती है, ऐसी लगती है कि जैसे वो मूव कर रही हो, चल रही हो। क्लियर? तो इट्स मीन कि वीडियो और कंप्यूटर बनाने की प्रक्रिया जिसमें चित्रकला या मॉडल या बोल सकते हैं प्रतिमा चलते हुए प्रतीत होती है। ओके, तो एनिमेशन उसे बोलते हैं। डिवाइस। ओके, इट इज़ एन इक्विपमेंट दैट हैज़ बीन डिज़ाइन टू डू पर्टिकुलर जॉब। ओके, तो स्टूडेंट डिवाइस। ओके, तो इट इज़ एन इक्विपमेंट। ओके, डिवाइस मीन्स होता है यंत्र। ओके, यह एक उपकरण है, इक्विपमेंट मीन्स उपकरण। ओके, यह एक उपकरण है, इसे किसी विशेष कार्य को करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ओके, सो स्टूडेंट्स, we have read this chapter 2 uses of computer. We have finished this chapter 2 uses of computer, and I hope you must have understood this exercise. You have understood this chapter 2 uses of computer. You have no problem in any stanza of this chapter 2. Okay, so now we are going to read and solve exercise C, which on page number 21, and exercise D, which on page number 22 in our fair computer notebook. Okay, so listen, let's see exercise C. Your exercise is fill in the blanks with the appropriate word from those given in the box. Okay, it's mean कि बॉक्स में दिए हुए शब्दों में से उपयुक्त शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। और एप्रोप्रिएट वर्ड में होता है उपयुक्त शब्द, उचित शब्द। ओके, तो बॉक्स में दिए हुए शब्दों में से उपयुक्त शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ओके, स्टूडेंट्स, जो हेल्पिंग वर्ड्स आर डिसीज में होता है बीमारियां या रोग, बिल्स में होता है नोट। ओके, रिसर्च में होता है अनुसंधान या खोज। ओके, सो स्टूडेंट्स, टर्न योर पेज फॉरवर्ड एंड लेट्स सी पेज नंबर 22. लेट्स सी फर्स्ट सेंटेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज सी। और फर्स्ट सेंटेंस इज शॉपकीपर्स यूज कंप्यूटर्स टू मेक ब्लैंक फुल स्टॉप। ओके, तो शॉपकीपर्स मीन्स दुकानदार। ओके, आर मीन्स शॉपकीपर्स मीन्स दुकानदार, यूज मीन्स प्रयोग करते, कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर का, टू मेक मीन्स बनाने के लिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, द करेक्ट वर्ड विच कैन बी राइट ऑन हियर बिल्स। ओके, so check out this word bills from the given help box and put this word bills in this first number blank to complete our first number sentence, and then your sentence becomes shopkeepers use computers to make bills. Okay, shopkeepers use computer to make bill. It means दुकानदार कंप्यूटर का उपयोग बिल बनाने में करते हैं। ओके, शॉपकीपर
कंप्यूटर का उपयोग बिल बनाने में करते हैं. ओके, बिल्स बनाने में शॉपकीपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. लेट्स सी सेकंड नंबर सेंटेंस. और सेकंड नंबर सेंटेंस इज कंप्यूटर्स हेल्प डॉक्टर्स इन diagnosing many blank full stop. Okay, so then the correct word which can be write down here in this second number blank to complete our second number sentence is disease. Okay, so then take out this word disease from the given help box and put this word disease in the second number blank to complete our second number sentence, and then your sentence become computers help doctors in diagnosing many diseases. Okay, it's mean कि कंप्यूटर डॉक्टर जो होते हैं वो कंप्यूटर का प्रयोग करके, ओके, इट्स मीन कंप्यूटर डॉक्टरों की मदद करता है बहुत से रोगों के निदान में, रोगों को पहचानने में, उनके निदान. ओके, कंप्यूटर कई बीमारियों के निदान या रोगों के पहचानने में डॉक्टर की मदद करता है. क्लियर? डॉक्टर मीन्स होते हैं चिकित्सक. बिकॉज से डैट कंप्यूटर कई बीमारियों के निदान या रोगों की पहचान में डॉक्टर या चिकित्सक की मदद करता है. ओके, लेट्स सी थर्ड नंबर sentence. Or third number sentence is scientists use computers in their blank work. Okay, full stop. So students, the correct word is research. Okay, so students, take out this word research from the given help box and put this word research in this third number blank to complete our third number sentence, and then your sentence becomes scientists use computers in their research work. Okay, it's mean वैज्ञानिक अपनी खोज के कार्य में, अपने अनुसंधान के कार्य में कंप्यूटर का उपयोग करते हैं. Okay, students, we have completed this exercise and I hope you must have understood this exercise. You have no problem in any sentence of this exercise. Okay, so students, your answers are, first number answer is bills, second disease. Okay, diseases, diseases, diseases means रोगों या बीमारियों, and last research, research, research means अनुसंधान या खोज. Okay, so let's see D. Exercise D is write T for true statement and F for false statement. It's mean कि सत्य कथन के लिए T और असत्य कथन के लिए F लिखिए. Okay, so students, your first number sentence is computers do not exist at shops. It's mean computer दुकानों पर हेल्प नहीं करता है, दुकानों पर मदद नहीं करता है. असिस्ट मीन्स होता है हेल्प. ओके, तो कंप्यूटर दुकानों पर मदद नहीं करता है. सो स्टूडेंट्स, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं शॉप्स में बिल्स मेक करने के लिए. ओके, वी यूज़ कंप्यूटर टू मेक बिल्स एट शॉप्स. ओके, हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं शॉप्स पे, दुकानों पे बिल मेक करने के लिए. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. सो स्टूडेंट्स, मार्क एफ इन दिस फर्स्ट नंबर box. Okay, against this first number sentence. Clear? Let's see second number sentence. So second number sentence is computers do not exist in the school library. It's mean computer school library में, स्कूल पुस्तकालय में मदद नहीं करती है. ओके, कंप्यूटर स्कूल लाइब्रेरी में, इट्स मीन स्कूल प्रयोगशाला में मदद नहीं करता है. तो स्टूडेंट्स, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज स्टूडेंट वी यूज़ कंप्यूटर टू मेंटेन स्कूल लाइब्रेरी. ओके, हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, वी यूज़ कंप्यूटर टू मेंटेन स्कूल लाइब्रेरी. हम स्कूल लाइब्रेरी को मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. तो स्टूडेंट्स, योर सेकंड नंबर सेंटेंस इट्स अ फॉल्स सेंटेंस. ओके, सो स्टूडेंट्स, मार्क एफ इन दिस सेकंड नंबर बॉक्स अगेन दिस सेकंड नंबर सेंटेंस. क्लियर? लेट्स सी थर्ड नंबर सेंटेंस which is last sentence of this exercise. So look clearly, your third number sentence is computers assist in reservation of tickets. Okay, it's mean कि कंप्यूटर टिकट्स को रिजर्व करने में, टिकट्स को आरक्षित करने में मदद करता है. तो स्टूडेंट्स, इट्स अ true statement because we reserve tickets with the help of computer. Okay, so students, mark T in this third number box against this third number sentence because it's a true sentence. Clear? It's a true statement. So students, your first number statement, it's a false statement. Second number statement, it's a false statement. And students, but your third number statement, it's a true statement. Clear? So students, we have also solved this exercise D, and I hope you must have understood this exercise D. You have no problem in any sentence of this exercise D. Okay, so students, today's classwork is that complete exercise C and D of this chapter 2, use of computers. Uses of computers in your FAIR computer notebook. It's a today's class. And student, your homework is that learn exercise C and D of this chapter 2 from your FAIR computer notebook. It's a today's homework. Okay, आपका क्लास वर्क है कि आपको एक्सरसाइज सी और एक्सरसाइज डी जो पेज नंबर 21 और 22 पे आपको अपनी FAIR कंप्यूटर नोटबुक में नोट डाउन करनी एज इट इज़. ओके, एंड स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज दैट लर्न एक्सरसाइज सी एंड डी फ्रॉम योर FAIR कंप्यूटर नोटबुक. आपको अपनी FAIR कंप्यूटर नोटबुक से एक्सरसाइज सी और डी लर्न करनी है. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव नो प्रॉब्लम फॉर लर्निंग वर्क बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन बहुत एक्सरसाइज सी एंड डी, यू हैव नो प्रॉब्लम. ओके, सो मैं आशा करती हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लर्निंग वर्क में. ओके, सो ऑल स्टूडेंट, फर्स्टली कंप्लीट योर क्लास वर्क, कंप्लीट एक्सरसाइज सी एंड डी विच पेज नंबर 21 and 22 of this chapter 2, uses of computers in your FAIR computer notebook, and send me a work here. Thank you.